नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान। सिलीगुड़ी में भी दिख रहा है भारत बंद का मिश्रित प्रभाव। वामपंथी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है रैलियां। अपनी कई मांगों को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठनों के एक दिन की हड़ताल का आह्वान करते हुए आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। वामपंथी पार्टियों और श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज गुरुवार को भारत बंद का ऐलान किया है। एक दिन की इस हड़ताल में तमाम विभागों के संगठनों ने अपना अपना समर्थन जताया है। इसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी शामिल होने की घोषणा की है। हालांकि भारतीय मजदूर संघ ने इस हड़ताल में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। ट्रेड यूनियनों ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ नए कृषि कानूनों को निरस्त करने 100 दिनों के बजाय 200 दिन रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। भारत बंद में बैंक, बीमा और रेलवे के निजीकरण का भी विरोध किया जा रहा है। इस देशव्यापी हड़ताल में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और राज्य के कर्मचारी संगठन समेत संगठित और असंगठित क्षेत्र के संगठन भी शामिल हो रहे हैं। सिलीगुड़ी में आज बंद का मिश्रित प्रभाव देखा जा रहा है। सड़कों पर सरकारी वाहन चल रहे हैं, लेकिन गैर सरकारी वाहनों की संख्या काफी कम है। कुछ दुकानें खुली है तो कुछ बंद है। सिलीगुड़ी के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों और बाजारों में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस बीच वामपंथी संगठनों के द्वारा रैलियों का भी आयोजन किया गया है। आज के जो धर्मघटे शामिल হয়েছে কৃষক, মজদুর, সাধারণ মানুষ, ছোট ব্যবসায়ী, বড় ব্যবসায়ী, চা বাগান, আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী এবং কৃষক বিরোধী নীতির প্রতিবাদে আমরা আজকে সারা ভারতে হরতাল, গোটা উত্তরবঙ্গে আজকে সাকসেসফুল হরতাল। তার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাই সেই সব মানুষদের যারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আজকে পথে নেমেছেন, আমাদের সমর্থন জানিয়েছেন। আজ সকাল থেকেই সারা রাজ্যের মতন সারা দেশের মতন শিলিগুড়িও স্তব্ধ হয়ে গেছে। শহরাঞ্চল, গ্রামাঞ্চল, আমাদের কাছে যা খবর এখনও পর্যন্ত সবটাই স্তব্ধ। দোকানের কর্মচারীরা যায়নি, দোকানপাটও বন্ধ, রিক্সা টিক্সা ইত্যাদি কিছুই চলাচল করছে না, কিছু সাইকেল টাইকেল চলাচল করছে। আর এখনও তো অফিস টফিস খোলে নেই, কিন্তু আমরা আশা করছি অফিস টফিস সবই বন্ধ থাকবে। একটা মানুষ সেই সাধারণ ধর্মঘটের, এটা তো কোনো রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘট নয় বা কোনো রাজনৈতিক দল ধর্মঘট থাকেনি। রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন করেছে। ধর্মঘটের যে 7 দফা দাবি, এটা শ্রমিকদের দাবি, এটা কৃষকদের দাবি, এটা বেকারদের দাবি, এটা সাধারণ মানুষের দাবি। সেই জন্য মানুষ খুব স্পন্টেনিয়াসলি, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এটাতে রেসপন্ড করছে, সাড়া দিচ্ছে। এই জন্য কোথাও আমাদের কোনো টিকিটিংও কিছু করতে হয়নি এখনও পর্যন্ত। কিন্তু আমরা রাস্তায় আছি, রাস্তায় থেকেই কিন্তু আমরা এই ধর্মঘটকে সফল করার কথা বলছি। রাস্তায় আমরা আছি। আমরা আশা করছি বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস তারা ধর্মঘটের বিরোধিতা করছে। তৃণমূল কংগ্রেস মুখে বলছে যে তারা দাবিগুলির পক্ষে, আর দাবিগুলির পক্ষে যদি হন তাহলে দাবি এরকম করে বিরোধিতা করছেন, এরকম করে সার্কুলার দিচ্ছেন কেন? তার মানেটা হচ্ছে বিজেপির হাতকে এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন, এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী না করে তারা এনডিএর সরকারকেই হাতকে শক্তিশালী করতে চাইছে। দাবির ভিত্তিতে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনের ডাকে দেশব্যাপী আজকে যে ধর্মঘট হচ্ছে, আমরা রাজনৈতিক দলগুলো বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস বাদে সবাই এই ধর্মঘটকে সমর্থন করছি। গোটা দেশের সঙ্গে সঙ্গে আজকে আমাদের রাজ্য এবং শিলিগুড়িতেও এই ধর্মঘটে মানুষ অভূতপূর্বভাবে সাড়া দিচ্ছে। তার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি জনগণকে। যে 7 দফা দাবি নিয়ে আমরা এই আন্দোলন করছি, ধর্মঘট করছি, জানেন যে করোনা পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থা ভয়াবহ। আমরা দাবি করেছি প্রতিটি মানুষ যারা আয়করের নিচে, তাদেরকে মাসে 7,500 টাকা করে দিতে হবে। এই দাবি কি অন্যায় কিছু দাবি? অমর্ত্য সেন, অভিজিৎ ব্যানার্জি তারা পর্যন্ত বলছে মানুষের হাতে টাকা দিতে হবে, সরকার দিচ্ছে না। সরকার কোভিড পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বেসরকারীকরণ, বিলগ্নীকরণ করছে। ব্যাংক, বিমা, রেল তারা কর্পোরেটের হাতে তুলে দিচ্ছে। কৃষক স্বার্থ বিরোধী, কৃষি বিরোধী, দেশ বিরোধী কৃষি আইন করে
তারা কৃষি ব্যবস্থাটাকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দিচ্ছে। শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিকের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। 8 ঘন্টা কাজের যে অধিকার তাকে 12 ঘন্টায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। মালিকের হাতে একতরফা অধিকার তুলে দেওয়া হচ্ছে শ্রমিককে বঞ্চিত করে। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। জিনিসের দাম বাড়ছে হু হু করে। কি কেন্দ্রের সরকার কি রাজ্যের সরকার, তাদের এ ব্যাপারে কোনো হুঁশ নেই। কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিচার ব্যবস্থা, আইন আদালত সব জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে ভয়ঙ্কর হস্তক্ষেপ হচ্ছে। সংবিধান আজকে আক্রান্ত। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। এবং আমরা দেখছি বিজেপির সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে যখন আমরা প্রতিবাদ করছি, আমাদের রাজ্যের সরকার তৃণমূল কংগ্রেস দল তারা মুখে বলছে যে দাবিগুলো সঠিক, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে খুশি করার জন্য তারা এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করছে। कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, एसओपी का कड़ाई से पालन का निर्देश। कोरोना वायरस के संक्रमण की दोबारा बढ़ने के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस में किसी गतिविधि पर नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, केवल उनके लिए जारी एसओपी का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न समारोह में भाग लेने वालों की संख्या 200 से कम करने की छूट दे दी है, लेकिन बिना केंद्र सरकार की सहमति के वे कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। यह गाइडलाइंस दिसंबर के पूरे महीने तक लागू रहेगी। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि ताजा गाइडलाइंस का उद्देश्य कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब मिली बढ़त को बरकरार रखना है। सर्दी और त्योहारों के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण में आए उभार को केवल सर्वेलेंस, कंटेनमेंट और सावधानी के बल पर ही रोका जा सकता है और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी का कड़ाई से पालन जरूरी है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपी में किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निकाय प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा। इसलिए स्थानीय प्रशासन की स्थिति के आकलन के बाद अपने इलाके में नए प्रतिबंध लगाने की छूट दी गई है। अलीपुरद्वार में बंद का दिख रहा है असर। सड़कों पर वाहनों की संख्या है काफी कम, अधिकतर दुकानें हैं बंद। विभिन्न ट्रेड यूनियन द्वारा आहूत देशव्यापी हड़ताल का असर अलीपुरद्वार में भी देखने को मिल रहा है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए सुबह से ही वाम मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा विभिन्न जगहों में पिकेटिंग की जा रही है। इसी कारण कई जगहों में उत्तेजना का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई है। सुबह में ही वाम मोर्चा कांग्रेसियों द्वारा उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन डिपो के सामने पिकेटिंग शुरू की गई और बसों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस ने पहुंचकर वहां से वाम मोर्चा और कांग्रेस समर्थकों को हटा दिया। इसके बाद से उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम से बसों के यातायात शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद वाम मोर्चा कांग्रेस के द्वारा बक्सा फीडर रोड सहित विभिन्न जगहों में पिकेटिंग की जा रही है। साथ ही रैलियों का दौर भी लगातार जारी है। यही कारण है कि अलीपुरद्वार में बंद का असर दिख रहा है। सड़कों पर वाहनों की संख्या काफी कम है और अधिकतर दुकानें बंद है। देश में 24 घंटे में आए 44,000 नए कोरोना केसेस, 500 से ज्यादा मौतें, अब तक 1,35,000 संक्रमितों की गई जान। भारत में लगातार 19वें दिन 50,000 के कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 44,479 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 524 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अब कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। बीते दिन 36,367 मरीज कोरोना से ठीक हुए। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में 7वें नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 92,66,000 हो चुके हैं। इनमें से अब तक 1,35,223 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केसेस बढ़कर 4,52,000 पर आ गए। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 7,598 बढ़ गई। अब तक कुल 86,79,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 36,367 मरीज ठीक हुए। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से कम है और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से ज्यादा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में 25 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13,55 लाख सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है।
जलपाईगुड़ी के डेंगुआ झाड़ चाय बागान इलाके में बंद समर्थक व पुलिस के बीच हुई झड़प। बंद समर्थकों द्वारा गाड़ी रोकने के प्रयास करने पर जलपाईगुड़ी के डेंगुआ झाड़ चाय बागान संलग्न इलाके में भारी तनाव छा गया। वाम मोर्चा व कांग्रेस समर्थकों ने सुबह सड़क पर उतरकर गाड़ियों को रोका, लेकिन वहां उपस्थित पुलिस बल बंद समर्थकों को वहां से हटाने में जुट गए व गाड़ियों की आवाजाही को सामान्य किया। इस बीच पुलिस व बंद समर्थकों के बीच हल्की झड़प भी हो गई। सुबह 9 बजे से विभिन्न इलाकों में दुकान बंद रही। तो ধর্মঘট, সেই ধর্মঘটে আমরা পথে নামছি। আমাদের বাগান থেকেও কর্মীরা আসবে, আমরা এক্ষুনি মিছিল শুরু করব। সমস্ত জায়গায় আমাদের কাছে যা খবর এই মুহূর্তে সমস্ত জায়গায় অবরোধ, মিছিল, মিটিং ইত্যাদিতে আছে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নামিয়ে পড়ছে। এইখানটা আমাদের চাইতে দোকানদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি যে ভাইরা আছে তারাই কিন্তু এই অবরোধের মধ্যে চলে আসে। এটা কোন বাজার? এটা ডেঙ্গুয়াজার বাজার। অভিযোগ উঠছে যে জোর করে আপনারা না, আপনারা লক্ষ্য করুন, আপনাদের ক্যামেরা খোলা আছে, আপনাদের মিডিয়া খোলা আছে, বাই ফোর্সের কোনো বিষয় নেই। মানুষ নিজেরা নামে পড়ছে, কোনো দোকানদারকে বলতে হয়নি, কোনো ব্যবসায়ী বন্ধু। হ্যাঁ, গাড়ি কিছু কিছু জায়গায় যারা অশ্লীলভাবে আজকেও গাড়ি চালানোর চেষ্টা করছে তাদের দেখলাম 2-1টা গাড়িকে তারা আটকানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু এই যে দেখুন গাড়ি যাচ্ছে, আপনার সামনে দিয়েই গাড়িগুলি যাচ্ছে। আমরা অবরোধের ওইভাবে নিচ্ছি না। दुनिया में कोरोना संक्रमण से एक दिन में रिकॉर्ड 12,000 संक्रमितों की मौत। 24 घंटे में आए 6 लाख नए केसेस। दुनिया के 218 देशों में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं रिकॉर्ड 12,000 कोरोना संक्रमितों की मौतें हुई है। एक दिन पहले 11,733 मरीजों की मौतें हुई थी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। इसके बाद मेक्सिको, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, ब्राजील, भारत, रूस, ईरान में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 6 करोड़ 7 लाख मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 14 लाख 25 हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1 करोड़ 73 लाख 28 हजार लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,78,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 92 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 44,000 मामले बढ़े हैं। वहीं कोरोना से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 45,000 मामले रिपोर्ट किए गए। कूच बिहार में बंद को सफल बनाने के लिए जारी है रैलियों का दौर। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में आज देशव्यापी बंद बुलाया गया है और इस बंद को सफल बनाने के लिए कूच बिहार में वाम मोर्चा के विभिन्न संगठनों के द्वारा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। सड़कों पर आज सरकारी बस तो दिख रही है, लेकिन गैर सरकारी बसों की संख्या काफी कम है। दूसरी तरफ सुबह उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम के एक बस में बंद समर्थकों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। पूरे कूच बिहार इलाके में व्यापक स्तर पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, यो साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट,
डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 3528 नए मामले सामने, 51 लोगों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच 24 घंटे में 3528 नए मामले रिपोर्ट किए गए और 51 मरीजों की मौतें भी हुई। यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में दी गई है। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 4,66,991 पहुंच चुकी है। वहीं मरीजों के मौतों का आंकड़ा 8,172 पहुंच चुका है। राज्य में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 4,34,067 पहुंच चुकी है। इसी के साथ राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 24,752 है। राज्य में 24 घंटे में 3,605 मरीज संक्रमण मुक्त हुए और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। राज्य में कोरोना वायरस की रिकवरी रेट 92.95% है। रायगंज के सिलीगुड़ी मोड़ में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को सीटू समर्थकों ने किया बंद। 10 ट्रेड यूनियनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर रायगंज शहर में भी देखने को मिल रहा है। आज रायगंज शहर के विभिन्न ट्रेड यूनियनों के द्वारा रैलियां निकाली गई। साथ ही आज सीटू की ओर से रायगंज के सिलीगुड़ी मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया, जिसके कारण रास्ते के दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। हालांकि अन्य दिनों के मुकाबले आज सड़कों पर वाहनों की संख्या कम है। अधिकतर सरकारी बसें ही दिख रही है। गैर सरकारी बसों की संख्या काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है। सूचना मिलते ही भारी संख्या में रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाल लिया गया। हालांकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई है। सिलीगुड़ी के जंक्शन इलाके से 3 किलो सोना समेत एक गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी के जंक्शन इलाके में केंद्रीय खुफिया विभाग ने 3 किलो सोना समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद फोजल बताया जा रहा है। वह बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके का निवासी है। जब्त सोने की कीमत 1,14,00,000 रुपए आंकी गई है। गुप्त सूचना की खबर पाकर सिलीगुड़ी के जंक्शन इलाके में खुफिया विभाग ने छापा मारा। इस दौरान इंडो म्यांमार होते हुए बिहार के लिए सोना
ले जाने के क्रम में उसे गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सड़क हादसे में टीएमसीपी के कूच बिहार जिला अध्यक्ष का निधन, शोकाकुल समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में शव को दी अंतिम श्रद्धांजलि। सड़क हादसे में टीएमसीपी के कूच बिहार जिला अध्यक्ष नरेंद्र दत्ता की मौत हो गई। मंगलवार रात लगभग 2 बजे वहां जिले के माथाभंगा 2 नंबर ब्लॉक के निशिगंज इलाके में दुर्घटना का शिकार हुए। हाल ही में उन्हें जिला मुखपत्र का दायित्व मिला था। गाड़ी में सवार अन्य 2 साथियों को भी गंभीर चोटें आई है। सभी एक छोटी गाड़ी में माथाभंगा से कूच बिहार जा रहे थे। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि कोतवाली थाने के फलीमारी पेट्रोल पंप इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक पोल पर उनकी गाड़ी ने धक्का मारा। सूचना पाकर निशिगंज आउटपोस्ट पुलिस ने तीनों को बरामद कर निशिगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां के चिकित्सक तन्मय अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने से पहले ही नरेंद्र दत्ता की मौत हो चुकी थी। अन्य 2 छात्र परिषद सदस्य सम्राट बर्मन व शुभजीत रॉय को प्राथमिक इलाज के बाद माथाभंगा महकुमा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इधर दुर्घटना के बाद निशिगंज इलाके की बिजली गुल हो गई। बुधवार को दिवंगत नरेंद्र दत्ता के शव को पांचगढ़ स्थित निवास से मौन रैली निकालकर माथाभंगा स्थित पार्टी कार्यालय ले जाया गया। वहां उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष, कूच बिहार जिला अध्यक्ष पार्थप्रीतम रॉय, अब्दुल जलील अहमद, युवा संगठन के सुधांशु परमानिक, दीनबंधु बर्मन, अजीजुर रहमान सहित तृणमूल के छात्र, युवा श्रमिक, किसान, खेत मजदूर आदि संगठनों के नेता व कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता को अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस घटना को लेकर पूरे माथाभंगा शहर शोकाकुल है। अत्यंत दुखजनक दुर्भाग्यजनक घटना। नरेन अत्यंत ভালো শুধু ছেলেই ছিল না, সাংগঠনিক দক্ষতাও তার অপরিসীম ছিল। জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সে সভাপতি। ইতিমধ্যেই কুচবিহার জেলার সমস্ত কলেজ এবং ছাত্র সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে দ্রুত গতিতে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তার এই অকাল প্রয়াণে সারা কুচবিহারবাসী আজকে শোকস্তব্ধ। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনিও বাঁকুড়ায় ছিলেন, বাঁকুড়া থেকেই তার এই দুঃখজনক ঘটনায় ব্যথিত হয়েছেন এবং তিনি শোক জ্ঞাপন করেছেন। আমরাও এই ব্যাপারে শোকগ্রস্ত। তার পরিবার প্রতি আমরা শোক জ্ঞাপন করছি। তার পরিবারের লোককে এই কঠিন যে ব্যাপারটা এটা সহ্য করার ক্ষমতা যাতে পায়, ঠাকুর মদন মোহনের কাছে সেই প্রার্থনা করছি। তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি আমরা সবাই। সে ভালো থাকুক, দেবলোকে তার জায়গা হোক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করছি। রাজ্য ছাত্র পরিষদের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, তিনিও কলকাতা থেকে রওনা দিয়েছেন সকাল 11টার ফ্লাইটে। 4টের মধ্যে এসে পৌঁছবেন আশা করছি। छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष को परिषद के छात्रों ने दी श्रद्धांजलि। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के कूच बिहार जिला अध्यक्ष नरेंद्र चंद्र दत्ता के दर्दनाक सड़क हादसे में हुई मौत को लेकर बुधवार शाम तृणमूल छात्र परिषद के लाताबाड़ी अंचल कमेटी की ओर से अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी ब्लॉक स्थित हैमिल्टनगंज इलाके में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लाताबाड़ी ग्राम पंचायत की प्रधान सोनाली दास सरकार, लाताबाड़ी अंचल छात्र परिषद के अध्यक्ष विश्वजीत चक्रवर्ती समेत क्षेत्र में रहने वाले छात्र परिषद के समस्त छात्रगण उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने मिलकर नरेंद्र दत्ता के फोटो के सामने मोमबत्ती जलाए एवं उनकी शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। আমাদের কোচবিহার জেলার সভাপতি শ্রী নরেন্দ্র দত্ত চন্দ্র আজ গভীর রাতে তিনি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তার প্রাণ হারান। তার জন্য আমরা গভীরভাবে শোকস্তব্ধ ও মর্মাহত। তার জন্য আজ আমরা বাস স্ট্যান্ডে তার উদ্দেশ্যে আমরা মোমবাতি। मानियाचक में स्टीमर डूबने की घटना में गंगा से निकला व्यक्ति का शव। मानियाचक की गंगा में स्टीमर डूबने की घटना में लापता 3 लोगों में से एक का शव बुधवार को आपदा प्रबंधन टीम ने पानी से निकाला। पिछले 2 दिनों से गोताखोर गंगा में तीनों लापता की खोज कर रहे थे।
बुधवार सुबह एक शव बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि मृतक का नाम सईदुल शेख है। वह झारखंड के साहिबगंज इलाके का निवासी था। मृतक युवक ट्रक का खलासी था। वहीं डूबे हुए ट्रकों में सिर्फ 2 को निकालने में एनडीआरएफ टीम सफल हुई है। बाकियों की तलाश की जा रही है। क्रेन के माध्यम से 2 ट्रकों को निकाला गया। ट्रक के केबिन में ट्रक के खलासी का शव फंसा हुआ था। इस्लामपुर में हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। इस्लामपुर थाना अंतर्गत धनतल्ला बाजार इलाके में 2 व्यक्ति सड़क पार करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दोनों को एक बस ने धक्का मार दिया। स्थानीय लोगों ने दोनों को तत्काल इस्लामपुर महकमा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को, जो बिहार निवासी था, उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति बिहार का रहने वाला था और उसका नाम अख्तर आलम था। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। হেঁটে যাচ্ছিলে, রাস্তা ক্রস করছিলে, রাস্তার মধ্যে কি ওই স্টেট বাস আসলে রানিং এ, তো গাড়ি ওর মধ্যে ছিল নি, তো এরা ভাবলে কি আমরা পার হয়ে যাব। পার হওয়ার পরে তারপরে কি পিছন দিয়ে এসে যে গাড়িটার পায়াটা চলে গেছে এর উপরে। কতজন ছিল? 2 জনই ছিল এরা। 2 জন ছিল। কোথায় হয়েছে এটা? এটা হচ্ছে ধনতলায়, ধনতলায় বাজার। ছেলেটার নাম হচ্ছে অক্তর, 35 হবে। এর 5টা বাচ্চা। এর বাড়ি হচ্ছে মাসনা বস্তি বগল বাড়ি। আর ধনতলা বাজারে এখানকার ওই বাজার ঘাট করতে এসেছিলে খাবার बच्चा खच्चा। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।